Morning children, welcome to class 1 computers. Children, this is our computer book IT Planet My Bits and Bytes. So children, in our previous video we were doing chapter 8 of this book. So let us start with chapter 8. So children, here is the chapter, that is chapter 8, starting with paint. So children, before going through the chapter, let us revise what we have studied till now. So children, starting from the first chapter, we have studied all about the computers till now. For example, children, we started with a machine. That computer is a machine. Then we studied what are machines. Machines are the device which make our work easier and faster. Then we studied there are two types of machines. One is manual and the other is electronic. So children, computer is one of the electronic machine. तो अभी तक बच्चों हमने कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ा है और हम क्योंकि वी आर गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड, हम और थोड़ा अलग चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बिफोर डूइंग दिस वी शुड रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड till now. So in the first chapter we studied that computer is a machine and it is an electronic machine. That is why we also studied there are two types of machine. One is electronic and the other is manual. The one which is handled or operated by the man is called manual and the one which runs on electricity is called इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो जो ये कंप्यूटर है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाता है और हमारे लिए बहुत सारे काम करता है. That is why it is also known as smart machine. Then children, we studied about uses of computer, different parts of computer. So we studied where all computers are used and then we studied what are the different main parts of computer. That is monitor, CPU, keyboard, mouse, etc. So children, then we also studied where all these computers are found. So computers are found in schools, offices, then it is also found in hospital and then for research and designing purpose and banks. So all these are the places where computers are found. But in previous two chapters we have studied about keyboard and mouse and we have understood very well that keyboard and mouse are the main these are the important parts of the computer. So children, as we know, keyboard is used for typing letters or numbers into the computer and mouse is used for first of all children, it is used for selecting something on the screen, for moving something on the screen or for pointing something. That is why mouse is also known as पॉइंटिंग डिवाइस. तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि जो माउस है जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग समथिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन में अगर कोई चीज़ दिख रही है, हम उसे दिखाना चाहते हैं या उसे पॉइंट करना चाहते हैं तो हम माउस यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. एंड चिल्ड्रन, अनदर यूज़ ऑफ माउस इज़ that it is also used for drawing and painting. So why I was talking about the mouse, children? Because mouse is one of the tool or the device in the computer which helps us in drawing and painting. So children, this is chapter 8 starting with paint. In this chapter we are going to read about an interesting topic. एक interesting topic के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि जब हमने शुरू में कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया था तभी जब we were reading about different works done by the computer तो हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर tells us story, computer can show picture or movie, computer can entertain us, computer can show let us listen to the music, we can play games. तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा था और उन्हीं में से एक चीज़ हमने पढ़ा था, it also helps us to draw and paint. ये हमें ड्रॉ और पेंट करने में भी हेल्प करता है. तो चिल्ड्रन, here in this chapter we are going to cover several topics. That is, here we have starting MS
पेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम MS पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू स्टार्ट इट। तो आज हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू इट प्रैक्टिकली टुमारो। आज हम पढ़ करके सारे टूल्स को समझ लेते हैं और कैसे MS पेंट को हम स्टार्ट करेंगे वो हम अपने बुक से समझ लेते हैं। फिर कल हम प्रैक्टिकली करके समझेंगे। कल वाले वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करके फिर समझेंगे। तो चिल्ड्रन, स्टार्टिंग MS पेंट प्रोग्राम, वी विल लर्न हियर हाउ टू स्टार्ट द MS पेंट प्रोग्राम। उसके बाद वी विल लर्न अबाउट टूल बॉक्स। दीज आर द टूल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द MS पेंट वाइल पेंटिंग। फॉर पेंटिंग, जब हम पेंट करते हैं तो हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है चिल्ड्रन। एज आई टोल्ड यू कि कंप्यूटर्स, व्हेन वी पेंट ऑन कंप्यूटर्स वी डोंट नीड पेंसिल, इरेज़र और स्केल और पेपर, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो पेंसिल इरेज़र हम बुक में कलर करने के लिए यूज़ करते हैं उन पेंसिल इरेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट पेंसिल इरेज़र है वो हम यूज़ करते हैं और उसे हम टूल्स कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे मिलती है? टूल बार पे मिलती है। तो जब हम विंडोज़ के बारे में, अभी पेंट विंडो प्रोग्राम विंडोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम वी विल सी कि वेयर दीज टूल्स आर फाउंड। तो इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट द टूल बॉक्स। जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स का मतलब होता है, टूल का मतलब औजार होता है। कोई भी काम करने के लिए हमको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन से टूल्स हो गए जो हमें ड्राइंग और पेंटिंग करने के टाइम काम आएगी। तो ये जितने भी टूल्स हमको इस प्रोग्राम में प्रोवाइडेड है वो सारे हमको टूल बॉक्स में मिलेगा। तो जब हम इसके विंडो को खोलेंगे वी विल स्टडी रीड हाउ अबाउट द ऑप्शंस, वी विल सी वेयर दीज टूल बॉक्स आर फाउंड। Then second topic we are going to cover in this chapter is color box. So children, as we are going to paint here, we are going to learn how to paint in computer. We need colors also, and these colors are present in the program in the form of color box. ये color box में सारे कलर जो भी हमको ज़रूरत होती है कलर करने के लिए या जो भी हम चाहते हैं यूज़ करना वो सारे हमको कलर बॉक्स में मिल जाएगी। और हम आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर देन विल come to know कि where all these things are found in the program. Now tools in the tool box. अब जितने भी टूल्स टूल बॉक्स में हमें मिलते हैं, all the facilities given by the tool box we will be reading about. Then we have pencil tool also. Pencil से it is same as the pencil which we use for drawing. वो एकदम उसी तरह से होती है, सिर्फ हम जैसे पेंसिल हमको वो दिखाई देती है, हम उसको छू सकते हैं, वो उस तरह की पेंसिल नहीं है। ये हमें सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगी, जिसको हम क्लिक करके इधर से उधर घुमा सकते हैं और उससे पेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ लिखते हैं तो हमें मिटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी अगर हम कुछ ड्रॉ करेंगे या लिखेंगे तो हमें एक इरेज़र की भी ज़रूरत है। तो वी हैव इरेज़र टूल ऑल्सो, वी विल रीड अबाउट दैट ऑल्सो। देन वी हैव ब्रश टूल। सो चिल्ड्रन, फॉर कलरिंग समथिंग वी नीड अ ब्रश। हमको किसी चीज़ को कलर करने के लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास कलरिंग टूल्स में, टूल बॉक्स में ब्रश टूल भी है। नाउ वी हैव लाइन टूल। एज यू नो कि लाइन भी ड्रॉ करने की हमको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास लाइन टूल भी वहाँ पर है। दीज आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर इन प्रोग्राम पेंट प्रोग्राम विच वी नीड वाइल ड्राइंग। ड्राइंग करते टाइम हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे फैसिलिटीज़ और द एसेसरीज आर फाउंड और आर गिवन बाय द tool box, are provided by the tool box. Now rectangle tool. अब rectangle tool भी हमको वहीं से मिलेगा जब हम पेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है oval tool और fill with color. So these are the shapes which we will use for drawing the shapes. चाहे वो rectangular tool हो चाहे oval tool हो, इन shapes को यूज़ करके हम ड्राइंग बना सकते हैं या कोई भी शेप बना सकते हैं। नाउ फिल इन कलर। अब ड्रॉ करने के बाद हमको कलर भी फिल करना होगा, तो जब हम फिल इन कलर को चूज़ करेंगे तो जो भी हमने शेप बनाया है दैट शेप विल बी फिल्ड विथ कलर और उसको एक कलर मिल जाएगा। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस chapter and will be reading in detail about these topics. So children, same as in every chapter we have Lappy. Here also we have Lappy. Lappy will be telling us
all about the computers. So let us see. So here is Lappy, children. Hi kids, Lappy says, hi kids, I know all of you like drawing and coloring. Now I will tell you how to draw and color in a computer with a start. So children, as I told you, time to time this Lappy will be telling all about the topics in which we'll be reading in the books. So here Lappy says, hi kids, I know all of you like ड्राइंग एंड कलरिंग. तो बच्चों, किसको ड्राइंग और कलरिंग करना नहीं पसंद होता है? हम पूरे टाइम अगर पढ़ते रहे या फिर पूरे टाइम खेलते रहे तो हमारा टाइम पास नहीं होगा और फिर पूरे टाइम हम एक ही काम नहीं कर सकते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए या अच्छे से उसे समझ करके अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए वी नीड टू रीड समथिंग वेरी केयरफुली. तो यहाँ पर भी जो पेंट है या कलर है, ड्राइंग है, इन सब चीज़ों में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें यहीं इस कंप्यूटर में ही मिल जाता है या इस प्रोग्राम में ही हमको ये सारी चीज़ें. सो चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक ही काम कर कर के बहुत थक जाते हैं, तो वी नीड टू हैव सम चेंज. और पूरे टाइम हम टीवी भी नहीं देख सकते कि टीवी देखा और अपना टाइम पास कर लिया. तो हियर कंप्यूटर इज़ द वन विच मेक्स अस एंटरटेन. ये हमें एंटरटेन भी करता है एंड इट हेल्प्स अस इन पासिंग आवर टाइम इन और एंगेजिंग आवरसेल्व्स इन अ फ्रूटफुल वे. तो कुछ अच्छे काम के लिए ये हमें एंगेज करके भी रखता है. तो अब छोटे बच्चे जब घर पे पूरे दिन लॉकडाउन के टाइम में रहे तो उनको ज़रूरत पड़ी कि क्या करेंगे दिन भर. तो एट दैट टाइम दे कुड डू वेरियस क्रिएटिव वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर. जैसे कि वो कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं या फिर कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं जिससे हमें सीखने और पढ़ने दोनों को मिलेगा. तो यहाँ पे भी यूजिंग दिस पेंट वी कैन ड्रॉ एंड कलर. जब भी अब हमें कुछ ड्रॉ और कलर करने को मिलेगा तो हम कहाँ से करेंगे? हम पेंट से करेंगे. सो ये जो पेंट है इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज माइक्रोसॉफ्ट पेंट. So children, as you know, for painting we need pencil and eraser, scale, color etc. to draw and color on a sheet of paper. अगर आपको एक शीट ऑफ पेपर में ड्राइंग करनी है तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन चिल्ड्रन, हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट MS पेंट. इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट वी डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स. हमें पेंसिल, इरेजर, कटर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे पास जो हमको ये सारी चीज़ें हमको कंप्यूटर में ही मिल जाएगी. बाय यूजिंग दीज थिंग्स वी कैन ड्रॉ एंड पेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट पेंट. तो इवन देयर ऑल्सो वी नीड दीज थिंग्स फॉर पेंटिंग. जैसे कि हमको पेपर पे पेंट करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमको अलग से जैसे ये सारी चीज़ें, ये वाली ओरिजिनल वाली पेंसिल और वो सब इरेज़र, ये सब नहीं लेना होगा, बल्कि हमें जो चीज़ें प्रोवाइडेड है MS पेंट में, वहाँ से हम चीज़ों को जैसे कि टूल्स जो प्रोवाइडेड है वहाँ से लेकर के वी कैन ड्रॉ एंड पेंट. सो सिमिलरली you can need all these things to draw on a computer also. All these things are present in program called MS Paint. तो जो हमारे पास यहाँ पे MS Paint प्रोग्राम है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड है. हमको अलग से इन चीज़ों को लेकर के ड्रॉ और पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चिल्ड्रन, दिस स्क्रीन you can see on the board, your screen is the स्क्रीन ऑफ MS पेंट. तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है चिल्ड्रन. सबसे ऊपर जो पिंक कलर का आपको लाइन दिखाई दे रहा है, दैट लाइन इज़ कॉल्ड टाइटल बार. या जो भी काम हम करते हैं और उस प्रोग्राम को हम एक नाम देते हैं, वो उसका नाम हमको पिंक कलर का जो ये स्ट्रिप सबसे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर वो उसका नाम दिखाई देता है. जैसे कि अभी हमको यहाँ पे अनटाइटल्ड
पेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ इस पर बनाया ही नहीं है। जब हम इसको बना लेंगे और सेव कर लेंगे तो फिर वापस खोलेंगे तब हमको ये इसका नाम दिखाई देगा। लेकिन अभी क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है, हमने कुछ सेव भी नहीं किया है, और या फिर हमने नया प्रोग्राम खोला हुआ है, पेज खुला हुआ है, तो हमें इसलिए अनटाइटल्ड पेंट करके वो दिखा रहा है। तो चिल्ड्रन, हियर यू कैन बिलो दैट यू कैन सी strip. This complete strip is called the tool bar. जो उसके नीचे हमको एक मोटी सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये पूरी स्ट्रिप जो है जिसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम कहते हैं टूल बार। टूल का मतलब होता है चिल्ड्रन औजार। द टूल इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी वर्क। जैसे हमको घर में तोड़ फोड़ करनी है या फिर कील ठोकना है या कुछ भी करना है, तो हम हमारे घर में टूल्स होते हैं ना, हथौड़ा होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसी तरह से उनको यूज़ करके हम अपने घर की चीज़ें भी ठीक कर लेते हैं या कुछ तोड़ फोड़ भी कर लेते हैं, या फिर हमको कुछ गाड़ना वाड़ना है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स विल हेल्प अस इन डूइंग ड्राइंग एंड पेंटिंग इन MS पेंट। तो इन सारे टूल्स को यूज़ करके हम MS पेंट में ड्राइंग और पेंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, जैसे कि हमको पेंसिल चाहिए होती है, वी हैव पेंसिल हियर, वी हैव, यहाँ पे हमारे पास पेंसिल है, कलर का ऑप्शन है, फिल कलर है। अगर हमको फिल कलर करना होता है तो हम कोई भी कलर चूज़ करके फिर उसके बाद वो ड्रॉप वाला जो हमारे पास कलर का ऑप्शन होता है उसको फिल कलर को चूज़ करते हैं, तो वो जो भी हमने बनाया होता है वो पूरा फिल हो जाता है। लेकिन चिल्ड्रन, इसकी जो आउटलाइन, जो भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं उसकी आउटलाइन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी वो खुला हुआ या गैप हुआ तो वो एरिया नहीं कलर होगी, पूरी हमारी स्क्रीन कलर हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम इस स्क्रीन पे पहुँचेंगे कैसे। तो इन पूरे स्क्रीन को, ये इस पूरे पेंट को समझने से पहले चिल्ड्रन, ये जो पेंट विंडो है इसके बारे में समझने से पहले वी हैव टू नो हाउ टू रीच दिस स्क्रीन। ये स्क्रीन जो है, ये पेंट जो है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू ओपन MS पेंट। हम MS पेंट को कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आई हैव टोल्ड यू हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, you will switch on the computer. After that you will go to start button. Here you have start button. As you can see here children, यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्ट बटन है, दिस इज़ कॉल्ड स्टार्ट बटन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पूरा ऑल प्रोग्राम दिखाई देगा। इट इज़ शोन ऑन स्क्रीन, दिस इज़ ऑल प्रोग्राम। इस ऑल प्रोग्राम पे जा कर के चिल्ड्रन हमारे पास एक मेन्यू बार खुलेगा। ये पूरा मेन्यू है, ये पूरा मेन्यू है। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है एसेसरीज़ का। इसके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एसेसरीज़ का। इस एसेसरीज़ पे हम जाएंगे। एसेसरीज़ के अंदर हमको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे। इसमें हमको नोट पैड दिखेगा, कैलकुलेटर दिखेगा, और गेटिंग नोट पैड, वर्ल्ड पैड भी दिखाई देगा। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, हम वो ढूंढेंगे। वी नीड पेंट, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न how to use paint in MS Microsoft पेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो here children you can see this is paint. You will select paint and click on it. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो we will have another screen children, and this screen is here is the screen. ये पूरा स्क्रीन हमको खुल जाएगा, ये पूरी विंडो हमको खुल जाएगी। अब चिल्ड्रन, दिस विंडो इज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट का विंडो है और हमें अनटाइटल्ड पेंट खुला है। क्यों अनटाइटल्ड खुला है? क्योंकि हमने इसको फर्स्ट टाइम खोला है। जब हम फर्स्ट टाइम इसको खोलेंगे तो सबसे ऊपर जो हमको यहाँ पे बार दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रिप इज़ कॉल्ड टाइटल बार। हर प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम हम खोलते हैं, हमको सबसे पहले वाले स्ट्रिप में बच्चों जो भी हम काम कर रहे हैं उसका टाइटल दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि वी हैव नॉट मेड एनी प्रोग्राम येट एंड वी हैव नॉट सेव्ड इट, तो यहाँ पे हमें अनटाइटल्ड बार दिख रहा है। मतलब हमने कोई इसको नाम नहीं दिया है
इस प्रोग्राम को या इस फाइल को, तो इसीलिए ये अनटाइटल्ड दे रहा है। जब हम इसमें कुछ काम करेंगे उसको सेव एज करेंगे, नाम देंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन वी ओपन द सेम प्रोग्राम वी विल हैव अ नेम अबव ऑन द टाइटल बार। और उसके बाद वी कैन सी अ ग्रीन कलर rectangle children. This green color rectangle is nothing but this is called tool bar. जैसे कि मैंने अभी पीछे वाले पेज में बताया कि these tool bars are the tools which are used by us while drawing and painting. जब हम drawing and painting करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हमारे पास ना पेंसिल है, ना कलर है, ना बुक है। और कौन से एक पेंसिल कलर पेज जो ओरिजिनल अदरवाइज पेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमको यहाँ पे जो टूल्स दिए गए हैं जैसे कि पेंसिल है, ड्रॉपर है, फिल कलर है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम यहाँ कलर करेंगे। और ये सारी चीज़ें किस में प्रोवाइडेड है? ये सारी चीज़ें हमको टूल बार में प्रोवाइडेड है। टूल बार, दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड बाय अस फॉर पेंटिंग इन MS पेंट। फिर चिल्ड्रन MS पेंट में पेंट करने के लिए हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे दूसरी चीज़ है। अब उसके बाद कलर्स, क्योंकि हम पेंटिंग कर रहे हैं वी नीड कलर्स ऑल्सो। पेंट करने के लिए हमें कलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वी हैव कलर्स ऑल्सो। और जब हम पेंट करेंगे तो इन कलर्स को हम यूज़ करेंगे। दीज आर द कलर्स विच वी विल यूज़ वाइल ड्राइंग एंड पेंटिंग। और फिर चिल्ड्रन उसके बाद वी नीड अ पेपर। अब पेपर यहाँ पे क्या है? ये जो पूरी एरिया है, जो वाइट कलर की एरिया आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज़ ड्राइंग एरिया। यहाँ लिखा भी हुआ है ड्राइंग एरिया। इस पूरे एरिया में जो भी हम ड्रॉ करेंगे इस पूरे एरिया में हमको दिखाई देगा। और इस एरिया में हम ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हैं ड्राइंग पेंटिंग के साथ तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से पेंसिल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेंसिल है। पेंसिल सेलेक्ट करने के बाद हम उसको माउस से ड्रैग करके ड्राइंग करेंगे। तो जो भी हम ड्राइंग करना चाहते हैं, चाहे हम स्क्वायर बनाना चाहे, सर्कल बनाना चाहे, अभी चिल्ड्रन हियर वी हैव शेप्स ऑल्सो। जैसा कि आप देख रहे हो हियर वी हैव वेरियस शेप्स ऑल्सो। हमारे पास बहुत सारे शेप्स भी हैं। इन शेप्स को यूज़ करके भी हम ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन जब हम ब्रश या पेंसिल को चूज़ करेंगे तो हम थिकनेस, जो विड्थ है, ये भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मोटा चाहिए, पतला चाहिए, जैसे भी हमको फिटिंग हमको ड्राइंग करनी है, इसके लिए हम यहाँ से इस थिकनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे विंडो में जो कि हमको करना है। तो सबसे पहले हम विंडो खोलेंगे, हम अपना कंप्यूटर खोलेंगे। वी विल स्टार्ट आवर कंप्यूटर। जब विंडो खुल जाएगा तो कंप्यूटर खुल जाएगा तो वी विल हैव अ स्क्रीन ऑन आवर कंप्यूटर, जिसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। ये है डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन में सबसे नीचे यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है। स्टार्ट के बटन पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स दिखाएगा। फिर हम ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद टिक करने के बाद वी विल गेट अनदर मेन्यू बार। उस पर हम एसेसरीज़ पर जाएंगे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। एसेसरीज़, दिस इज़ एसेसरीज़ पे हम जाएंगे। इन एसेसरीज़ वी विल सर्च फॉर पेंट, और पेंट पे यहाँ आकर के हम क्लिक करेंगे। और जब हम क्लिक करेंगे तो हमको MS पेंट का ये स्क्रीन दिखाई देगा चिल्ड्रन। अब स्क्रीन में सबसे ऊपर हमारे पास है टाइटल बार जो पिंक कलर से है। उसके नीचे मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे हमारे पास टूल बॉक्स है। आधे स्क्रीन में वी हैव tool box, and in the second part of the screen beside the tool bar we have color box. उसके अलावा ये ड्राइंग एरिया है। तो बच्चों इतना हमने सीख लिया है। आप इससे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। आप जब भी ड्राइंग करोगे या कलरिंग करोगे आप यू विल फॉलो दीज स्टेप्स फॉर डूइंग द कलरिंग और द पेंटिंग। नाउ अब द पेंट प्रोग्राम विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू कैन नाउ वर्क ऑन इट। जब हम इतना खोल लेंगे तो हमारे सामने कौन सी स्क्रीन होगी? पेंट प्रोग्राम की स्क्रीन होगी। अब इसके ऊपर हम जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं वी कैन ड्रॉ। अब इसके बाद चिल्ड्रन वी हैव अनदर थिंग। अब ये टूल बार है। टूल बार में हमारे पास क्या क्या है?
टूल बॉक्स इज़ वन ऑन द टॉप ऑफ द पेंट प्रोग्राम। जो पेंट प्रोग्राम है सबसे ऊपर हमारे पास टूल बार होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल द, जैसे कि ये है टूल बार, तो ये हमारा है टूल बार। अभी हमने पीछे भी देखा टूल बार। टूल बार इज़ ऑन द टॉप ऑफ द पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम के सबसे ऊपर जो होता है वो टूल बार होता है। इट कंटेन्स ऑल द टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्राइंग। इट इज़ जस्ट लाइक योर पेंसिल बॉक्स। जैसा कि हमारे पास पेंसिल बॉक्स होता है, पेंसिल बॉक्स में हमारे पास पेंसिल होता है, इरेज़र होता है, और उसके बाद स्केल होता है और कलर्स होते हैं। उसी तरह इसमें भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो जिसकी हमको ज़रूरत होती है ड्राइंग करने के लिए या पेंट करने के लिए। तो फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। लेट अस सी व्हाट आर दीज ऑप्शंस चिल्ड्रन। दिस इज़ टूल बार। अब हम पास से देख रहे टूल बार को। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे भी सेम एज इन अदर MS प्रोग्राम्स वी हैव कट का ऑप्शन होता है हमारे पास। कुछ भी हमको कॉपी कट पेस्ट करना है तो हम यहाँ से कट कॉपी पेस्ट वी कैन यूज़। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर। देन वी हैव हियर चिल्ड्रन वी हैव पेंसिल। दिस इज़ कॉल्ड पेंसिल। यहाँ पे पेंसिल रखा हुआ है, दिस इज़ पेंसिल। वी नीड अ पेंसिल फॉर ड्राइंग, तो वी कैन यूज़ दिस पेंसिल। देन वी हैव इरेज़र। इरेज़र वी कैन यूज फॉर इरेजिंग इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग। कुछ हमसे गलत हो जाता है, वी वांट टू इरेज, तो हम यहाँ से इरेज़र ले सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव फिल कलर। अब कोई हमने फिगर बनाया है, सपोज़ हमने यहाँ से लेकर के एक सर्कल बनाया है, दीज आर द शेप्स। एक शेप बनाया है, उस शेप में हमको कलर करना है, तो हम यहाँ से फिल उठाएंगे, फिल विथ कलर उठाएंगे और उस शेप में हम क्लिक करेंगे तो पूरा जो शेप हमने राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो पूरा कलर फिल हो जाएगा उसी एक पर्टिकुलर कलर से। और यहाँ पे उसके बाद ए जो लिखा हुआ है, दिस इज़ टेक्स्ट। एज यू नो चिल्ड्रन, टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ लिखना है। अगर कोई टेक्स्ट आप एंटर करते हो तो आप इस कैपिटल ए को यूज़ करोगे। उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव दिस मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस को भी यूज़ करके चिल्ड्रन जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉपर है। अब ड्रॉपर इज़ यूज्ड फॉर पिकिंग द कलर। ये कलर हम कहाँ से पिक करेंगे? वी विल पिक द कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। ये हमारा टूल बॉक्स है और इसके जस्ट बगल में हमारे पास है कलर बॉक्स। वहाँ से हम कलर लेकर के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है ब्रश। सो चिल्ड्रन, वी हैव टू थिंग्स। एक तो पेंसिल है ड्राइंग करने के लिए, तो अगर हम जब पेंसिल यूज़ करेंगे तो हमको उसकी साइज़ एडजस्ट करनी होगी। कैसे हम साइज़ एडजस्ट करेंगे? ये साइज़ से डिफरेंट साइजेस आर गिवन या विड्थ दी हुई है, इससे हम साइज़ एडजस्ट करेंगे। तो मोटी पेंसिल, पतली पेंसिल, जैसा हम विड्थ रखते हैं उस हिसाब से हमको पेंसिल भी चले, उतना ही थिकनेस चलेगा, उतनी थिकनेस पेंसिल की भी होगी। और उसके बाद अगर हमको यहाँ से ब्रश यूज़ करना है तो ब्रश की भी थिकनेस हम इसी साइज़ से ही एडजस्ट करेंगे। कभी कभी हमको मोटी ब्रश चाहिए होता है, पतला, जिस साइज़ का हमको ब्रश चाहिए होता है उस साइज़ का हम एडजस्ट कर लेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स। ये शेप्स है, जैसा कि मैंने बताया, ये शेप्स है और ये आउटलाइन के लिए है। दिस इज़ फॉर द आउटलाइन। ये जो है शेप की आउटलाइन बनाने के लिए हम इसको चूज़ करेंगे। दिस इज़ फॉर मेकिंग द आउटलाइन ऑफ द शेप। और उसके बाद फिल, शेप फिल। अगर हमको शेप को फिल करना है तो ये वाले ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस विच आर प्रोवाइडेड टू अस इन द टूल बॉक्स। अदर देन दीज चिल्ड्रन, यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन भी है। हमको जितनी एरिया सेलेक्ट करनी है हम इससे सेलेक्ट करेंगे। क्रॉप कर सकते हैं, फिर रीसाइज कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। मतलब पूरे जो भी हमने ड्रॉ किया उसको पूरा घुमा भी सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस विच आर प्रोवाइडेड इन टूल बॉक्स। अब बिसाइड दिस वी हैव कलर बॉक्स ऑल्सो। हमारे पास इसके बाद ये है कलर बॉक्स। हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। वी कैन यूज़ कलर्स फ्रॉम दिस कलर बॉक्स फॉर डूइंग पेंटिंग और कलरिंग।
Children, today we studied all about the MS Paint. Means in MS Paint we studied how to start MS Paint from the computer, on the computer, and how to use these toolbar and the options or the tools present in the toolbar for drawing and painting. And we studied about colors also, the colors which are provided here. So we studied about toolbox and the color box, title bar, and in our next video, children, will do it practically and then try to understand how we can use these tools or the colors for drawing and painting. कल हम एक इंटरेस्टिंग इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ड्रॉ करके और कलर करके. एंड बट चिल्ड्रन, आज हमें पहले टूल बॉक्स में मिलने वाले टूल्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी था. सो वी हैव अंडरस्टूड द कलर्स provided here in the color box and the tools provided in the tool box. Tomorrow we will be doing it practically and understand it clearly. So children, this is all for today. We will meet once again in tomorrow's video. So till then, thank you.